Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. I welcome you to the part 2 of this video from the point we left in the previous video. So far we have been introduced with the major characters of the story, the major point line of the story. I hope that is very clear to you. Do let me know in which year Louis Fisher met Mahatma Gandhi and he recounted this story. Gandhi recounted this story to him. कमेंट नाउ कौन से ईयर में लुई फिशर मिले थे महात्मा गांधी को जब उन्होंने ये स्टोरी को रिकाउंट किया है. सो लेट अस टेक आवर डिस्कशन फॉरवर्ड फ्रॉम द पॉइंट वी लेफ्ट because this is the lengthy chapter. We might need another parts, so this is a part 2. Do go and view the part 1 of this video in order to gain complete understanding. Gandhi decided. How did they? I have told you about the main condition that he suffered, that was of untouchability. Very important point of the story. Gandhi decided to go first to Muzaffarpur, which was en route. En route का meaning होता है on the way to Champaran. Gandhi decided, first of all, along with Rajkumar Shukla, Gandhi went to Patna to meet Rajendra Prasad. From Patna they went to Muzaffarpur. To Muzaffarpur came en route on the way to Champaran. So he said that first of all let us go to Muzaffarpur. Gandhi decided to go first to Muzaffarpur, which was en route to Champaran, to obtain more complete information about conditions then Shukla was capable of imparting. जितना शुक्ला ने बताया उससे ज्यादा समझने के लिए, एक्चुअल कंडीशंस को समझने के लिए महात्मा गांधी मुजफ्फरपुर रुके. He accordingly sent a telegram to Professor J.B. Kriplani of the Arts College in Muzaffarpur, whom he had seen at Tagore Shanti Niketan School. The train arrived at midnight, 15 April 1917. महात्मा गांधी के लिए वेट कर रहे थे प्रोफेसर के साथ साथ a large body of students. Gandhi stayed there in order to gain complete information about the sharecropping system in Champaran, about the inequality that was present there. Gandhiji decided to meet a professor whom he has seen in the Shanti Niketan school. So Gandhiji stayed there for 2 days. I tell you, for a professor who is working in a college, and that too under the British rule also, it is very difficult for him to have a freedom fighter in his house. But he was very good-hearted person who believed in Indian nationalism, Indian fervor. So that is why he gave home to Gandhi for 2 days. Gandhi stayed there for 2 days in the home of Professor Malkani, a teacher in a government school. It was an extraordinary thing in those days, Gandhi commented, for a government professor to harbor a man like me. मेरे जैसा इंसान. अब मेरे जैसा इंसान कौन है? जो बिलीव करते हैं हिंद स्वराज में, हिंद स्वराज, इंडियन होम रूल, जो बिलीव करते हैं एंटी कलोनियल है, वो फ्रीडम फाइटर है. तो एक ऐसे पर्सन को जो कि एक फ्रीडम फाइटर है, एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने वाला प्रोफेसर उसे जगह दे रहा है, रेसिडेंस दे रहा है. इट्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग. In smaller localities, the Indians were afraid. In smaller localities, the Indians were afraid to show sympathy for advocates of home rule. Indian home rule जो advocates हैं उन्हें इतनी sympathy नहीं दी जाती थी. The news, because at that time Britishers were at such a position that if you utter a word against them, you might lose your job, you might lose your identity, because Indian people were very scared of Britishers. Indian people considered themselves to be inferior as compared to
the superiority of British people. They were dominant, they were knowledgeable, they played with the emotions, they played with the complete ideology of Indian people. Indian people could not resist. If at all they resisted, they feared the fact that they might lose their lives. So it is very much surprising thing to know that a government professor were ready to house a person who was associated with the home rule. Who is that person? कमेंट नाउ। देखते हैं कितनी कहानी समझ में आ रही है। द न्यूज ऑफ गांधीज एडवेंट एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण। गांधी जी आए हैं, क्यों आए हैं, किस मिशन से आए हैं, मुजफ्फरपुर से चंपारण तक ये बात फैल गई। शेयर क्रॉपर्स कि हमारे लिए कोई आया है। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण began arriving on foot and by conveyance, किसी ट्रांसपोर्ट के थ्रू, टू सी देयर चैंपियन। गांधी जी का उनके लिए आना जीत के बराबर था कि कोई उनके लिए आया है। He was seen as महात्मा, he was seen as a ray of hope, ray of hope। और ये सब क्यों हुआ था? बिकॉज ऑफ द रेसोल्यूट नेचर ऑफ राजकुमार शुक्ला। माइंड यू, मुजफ्फरपुर लॉयर्स called on Gandhi to brief him. They frequently represented peasants group in court. They told him about their cases and reported the size of their fee. यहाँ पर गांधी जी ने जब देखा कि इतनी फी चार्ज की जा रही है इनका केस, इनके इश्यूज को कोर्ट में प्रेजेंट करने के लिए, गांधी जी ने लॉयर्स को गुस्सा किया कि आप चाइड किया, गुस्सा किया कि आप इतनी फी क्यों चार्ज कर रहे हैं शेयर क्रॉपर्स से। He said, I have come to the conclusion that we should stop going to law courts. कोर्ट्स में जाने से कुछ नहीं होगा, आरटीआई लगाने से, एफआईआर करने से, केस करने से कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पर एक कलेक्टिव मूवमेंट रन करनी पड़ेगी जिससे पता चले कि हम डिसअग्री करते हैं ब्रिटिश जो हमारे लैंडलॉर्ड्स हैं उनके रूल से हम डिसअग्री करते हैं। तो यहाँ पर कोर्ट में जाने से कुछ नहीं होगा, हैवी फी चार्ज होगी, डेट पे डेट पर डेट दी जाएगी। So he said, I have come to the conclusion that we should stop going to law courts. Taking such cases to the courts does little good. कुछ ज्यादा फायदा होगा नहीं। Where the peasants are so crushed, peasants are already so crushed, so fear stricken, law courts are useless. जहां पर लोग डरे हुए हैं, already crushed है, कोर्ट्स कुछ काम नहीं आने वाले हैं। Very important words, you can use them in your answers. The real रिलीफ तब आएगा जब ये डर खत्म होगा, जब आइडेंटिटी क्राइसिस, खुद को इंफीरियर मानना बंद करेंगे, आइडेंटिटी, आइडिया ऑफ सेल्फ आएगा कि हम भी इंसान हैं, हमारे साथ भी गलत हो रहा है, हमारे पास भी वॉइस है, हमें भी अपने लिए बोलना पड़ेगा। जब ये फ्रीडम ऑफ स्पीच आ जाएगी तब कोई कंक्लूजन निकलेगा। कोर्ट्स में जाने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है। मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड, एरेबल का मीनिंग होता है फर्टाइल, उपजाऊ। Most of the arable land in the Champaran district was divided into large estates. चंपारण डिस्ट्रिक्ट्स में जितने भी लैंड्स थे उन लैंड्स के लैंडलॉर्ड्स जो थे वो ब्रिटिश पीपल थे। सो was divided into large estates owned by Englishmen and worked by, देखिए इनइक्वालिटी, ओनर्स तो इंग्लिशमैन है, काम करते हैं इंडियन टेनेट्स जो फार्म लैंड पर काम करते हैं। द चीफ कमर्शियल क्रॉप क्या थी? जो क्रॉप सेल की जाती है, कॉमर्स के लिए काम आती है, ट्रेडिंग के लिए काम आती है, जो सोसाइटी में ट्रेडिंग में काम आती है, तो कमर्शियल क्रॉप थी इंडिगो की। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड, अब इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स
क्या कंपेल करते थे? ऑल टीनेंट्स टू प्लांट 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स। कहा गया कि क्योंकि आप इस लैंड पर काम करते हो तो आपके पास जितनी भी लैंड आपको दी गई है उसमें से आप 15%, सपोज ये एक पार्ट ऑफ लैंड है तो 15% लैंड पे आप इंडिगो ग्रो करेंगे। 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो एंड सरेंडर, इतना आप उगा करके देंगे और सारा सरेंडर कर देंगे ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को। सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट। आप हमारे लिए हमारी लैंड पर करो, यहां पर आप स्पिनच करो, पोटैटो करो, टमेटो करो, लेकिन अपनी लैंड का 15% हिस्से पे आप इंडिगो ग्रो करोगे और इंडिगो, एंटायर इंडिगो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड को एज रेंट दे दोगे। लेकिन जो ये 15% है ये कमर्शियल क्रॉप है, ये ट्रांसपोर्ट होती है, ट्रेड होती है, मुनाफा लेकर के आती है, ये सब आप एज रेंट दोगे ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को। लेकिन अब गड़बड़ तो यहां पर हो गई, अब तक तो काम चल रहा था, बिकॉज फार्मर्स वर फियर स्ट्रिकन, दे वर क्रश्ड, तो वो चुपचाप काम कर रहे थे। द लैंडलॉर्ड्स वर कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 or 15% of their holdings with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent. This was done by a long term contract. Long term contract के जरिए ये सब काम किया जा रहा था। अब क्या प्रॉब्लम हुई? प्रॉब्लम तो ये हुई कि जर्मनी में सिंथेटिक कलर, सिंथेटिक इंडिगो आ गया, जिसकी वजह से जो 15% जो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ साइन कर रखा था उसका अमाउंट मांगा कि अगर आपको इस कॉन्ट्रैक्ट को डिसकंटिन्यू करना है तो इतना अमाउंट हमें पे करो, हम आपको इंडिगो प्लांटेशन से फ्री कर देंगे। लेकिन ये गलत था। ऐसा करना, पुअर पेजेंट से पैसे चार्ज करना, अग्रीमेंट को डिसकंटिन्यू करने का, तो इस केस को समझते हैं। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्न्ड दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, आर्टिफिशियल इंडिगो। They thereupon obtained agreements from the sharecropper. आप उनसे agreement लेने लगे, pay them compensation for being released from the 15% arrangement. अगर ये 15% arrangement से आपको बाहर जाना है, डिसकंटिन्यू करना है, तो आपको compensation देना पड़ेगा। You have to pay compensation. The sharecropping arrangement was irksome, tiresome to the peasants, and many signed willingly. क्योंकि इंडिगो उगाना ऑलरेडी ही बहुत टायरिंग जॉब है, टफ जॉब है, चैलेंजिंग जॉब है। Why? क्योंकि एक इंडिगो को ग्रो करने से जो बाकी लैंड है उस पर भी असर होता है। फर्टिलिटी, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, तो इंडिगो ग्रो करना अपने आप में ही एक टायरिंग, टफ और चैलेंजिंग काम है। तो सबने विलिंगली साइन कर दिया, भाई हमसे पैसे ले लो, इंडिगो की क्रॉपिंग को बंद करो। Those who resisted engaged lawyers. कुछ लोगों ने केस किया कि नहीं ये गलत है। The landlord hired thugs, और लैंडलॉर्ड ने ठग्स को हायर किया। Meanwhile the information about synthetic indigo reached इलिटरेट पेजेंट्स के पास। जब सिंथेटिक इंडिगो की न्यूज पहुंची कि अब तो ये इंडिगो वैसे ही ग्रो नहीं करवाने वाले हैं, इंडिगो शेयर क्रॉपिंग, इंडिगो को ग्रो करना, रेस करना ऑलरेडी बंद होने वाला है, तो मनी किस बात का चार्ज कर रहे हैं। तो इसीलिए जो ब्रिटिशर्स को मनी डिसएग्रीमेंट के लिए दे चुके थे वो अब अपनी मनी का रिफंड चाहते थे कि इन्होंने हमारे साथ गेम, फाउल गेम प्ले किया है ऑन द नेम ऑफ गेटिंग अस फ्री फ्रॉम द अग्रीमेंट who had signed. They wanted their money back. At this point
इस मॉडल के बीच में, इस सिचुएशन के बीच में याद रखिएगा 15% शेयर क्रॉपिंग, इंडिगो, कंपनसेशन, यही मेन कीवर्ड्स हैं. सो एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण. ड्यूरिंग दिस टाइम गांधी अराइव्ड इन Champaran. He began by trying to get the facts. First, he visited the secretary of the British Landlord Association, but उन्होंने कोई भी information नहीं दी. So on that note, this is the part 2 of the Indigo series that we have started on Independence Day. So my dear students, stay tuned with me with the part 3 and I'll try my best to cover it as soon as possible. But this chapter is important. मेनली राजकुमार शुक्ला की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक और उनके जो नेचर के कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके रिलेटेड मैंने आपको कीवर्ड्स बता दिए हैं, उन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा. इन 2 पार्ट्स को अच्छे से व्यू कीजिएगा, उसके बाद आने वाले 3rd पार्ट को व्यू कीजिएगा. एंड इफ यू लाइक द वे आई एम टेकिंग दिस पेन फॉर यू पीपल एंड टॉकिंग अबाउट वर्बेटिम, word to word, please do like this video, share this video with your friends. Let us grow together. Let this be our year. Thank you.